नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। वर्तमान पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के तहत आनंदपुर साहिब के चंगर क्षेत्र के गांव लखेड़ के सरकारी प्राइमरी स्कूल के नवीनीकरण के लिए 40,40,000 रुपए की ग्रांट जारी की गई। स्कूल बिल्डिंग की हालत काफी जर्जर थी और इस स्कूल के बच्चे पड़ोस के गांव के स्कूल में पढ़ने जाते थे। अब स्थानीय निवासियों ने इस नई इमारत के लिए शिक्षा मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैस का शुक्रिया अदा किया है और इस बारे में बात करते हुए शिक्षा मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैस ने कहा है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 20 से 22 स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हालत में है। लाखों रुपए लगाकर इन स्कूलों की हालत भी सुधारी जा रही है। तो आनंदपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जर्जर स्कूल की हालत देखते हुए शिक्षा मंत्री ने बजट जारी किया है। इसके लिए एक ग्रांट दी है 40,40,000 की, जिससे इस स्कूल की हालत को सुधारा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में पूरे 20 से 22 स्कूल ऐसे हैं जिनकी हालत जर्जर है और अब शिक्षा मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि इनके लिए ग्रांट जारी करके इनके नवीनीकरण सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा, ताकि जो बच्चे दूसरे गांव में स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, दूसरे गांव में जाने के लिए मजबूर है, उन लोगों को अपने ही गांव में और अपने ही क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधाएं मिल सकें। तो स्कूल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। आनंदपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल है जिसकी हालत पूरी तरीके से खंडहर हो चुकी है और अब इसके सुधारीकरण का काम किया जा रहा है, नवीनीकरण का काम किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कुछ ही समय बाद इसको सुधार लिया जाएगा और जो बच्चे दूसरे गांव में जाकर के पढ़ने के लिए मजबूर है उनके लिए एक अच्छी सुविधा, एक बेहतर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनको अपने नजदीकी क्षेत्र में, अपने ही गाँव में शिक्षा मिल सकेगी, वो भी बेहतर शिक्षा। टोटली नवा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ 20-22 ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜੋ ਖੰਡਰ ਰੂਪੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਖੇੜ ਲਾ ਲਓ, ਸਵਾਮੀਪੁਰ ਬਾਗ ਲਾ ਲਓ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਲੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਪਲਸਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗੂਵਾਲ ਦਿਵਾੜੀ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਯਾਦ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ, ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈਂਡ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ PSPCL ਤੋਂ ਇੱਕ NOC ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰਵੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਝੜਦੀ ਤੀ ਸਾਰੀ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀ ਬਥੇਰੇ ਆਲੇ, ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਚਾਹ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਹ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਧਨੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਲਗਭਗ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਜੀ ਲਗਭਗ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਛੋਟੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਧਨੇੜੇ ਬਾਸ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ। और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने कल पार्टी छोड़ दी है और दिल्ली जाकर के बीजेपी में ज्वाइन कर लिया है। वहीं मल्लापुर में चंडीगढ़ भाजपा नेता दविंदर सिंह बबला के फार्म हाउस को गमाड़ा
स्टॉल ने सील कर दिया है। बावला ने कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि उन्होंने आप में शामिल होने से इनकार कर दिया था। बावला का आरोप है कि बिना नोटिस के ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई भी बताया है। तो चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर बीजेपी के उप प्रधान बावला का फार्म हाउस सील कर दिया गया है और उनका आरोप है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी में शामिल होने से मना कर दिया था, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक बदला लेने के तहत ये कार्रवाई की है, ये सीलिंग की कार्रवाई की है। ये बावला का आरोप है। तो बीजेपी से ये उपाध्यक्ष हैं, गमाडा इन्फोर्समेंट स्टाफ ने ये सीलिंग की कार्रवाई की है और उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी में शामिल होने से मना कर दिया था, जिसके बाद से ये राजनीतिक बदला उनसे लिया गया है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। तो फार्म हाउस को सील करने के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं जो वो सीलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हुंकार भरी थी शहीद भगत सिंह ने और 200 साल की गुलामी की जंजीर पिघलकर पारा पारा हो गई थी। आज एक बार फिर वही हुंकार भरी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने। मकसद आजादी के 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित जनता को उनके अधिकार दिलाना, उन्हें वो सम्मानजनक जीवन देना जिसकी कल्पना शहीद आजम ने की थी। सफर आसान नहीं था क्योंकि 75 सालों से सरकारी पीड़ा सहन करती जनता भी शोषण, रिश्वत और कालाबाजारी को भाग्य का लिखा समझ बैठी थी। लेकिन एक दिन ये तस्वीर बदलनी थी और इसे वही बदल सकता था जिसके दिल में निस्वार्थ सेवा भाव हो, जिसने आम आदमी की समस्याओं को करीब से देखा हो, उसकी पीड़ा महसूस की हो। माननीय मुख्यमंत्री का मानना है कि उनकी सरकार की पहली जिम्मेदारी जनता के जीवन में आसानी लाना है। इसलिए उनकी सरकार सत्ता के गलियारे में नहीं, जनता के द्वारे पर होगी। लिहाजा उन्होंने सुनिश्चित किया कि पंजाब में अब किसी को भी राशन लेने के लिए दुकानों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि हर महीने सरकार आपका राशन खुद आप तक पहुंचाएगी। गेहूं या आटा, पसंद आपकी। मान सरकार का मिशन, घर घर मुफ्त राशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एमएसपी की मांग को लेकर के किसानों की हड़ताल जारी है। केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के बीच जो है ये एक बैठक हुई है और किसान नेताओं के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की ये बैठक हुई है। केंद्र सरकार 4 और फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हो गई है। हरियाणा बॉर्डर पर मांगों को लेकर के अभी भी डटे हैं किसान, वहीं किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं जहां पर एक बैठक हुई थी, चौथे दौर की वार्ता हुई थी किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच, जिसमें 4 और फसलों पर सरकार ने एमएसपी देने को मंजूरी जरूर दे दी गई है, लेकिन किसान जो है, किसानों ने इस मांग को ठुकरा दिया है। वो अभी भी डटे हैं कि सभी फसलों पर एमएसपी दी जाए और जो उनके 8 सूत्री मांगे हैं उन पर भी मंजूरी मिले। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अभी सीधे चंडीगढ़ से सामने आ रही है जहां पर हरियाणा बॉर्डर पर मांगों को लेकर अभी भी किसान डटे हैं। लेकिन जो बैठक हुई थी केंद्रीय नेतृत्व में, जो बैठक किसानों के साथ की गई थी, उसमें यह बताया जा रहा है कि 4 ऐसी फसलें हैं जिन पर सरकार और एमएसपी देने को तैयार जरूर हो गई है, लेकिन जो किसान है उनकी तरफ से ये प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं जहां पर अपनी मांगों को लेकर अभी भी किसानों की हड़ताल जारी है और जो सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि 4 और फसलों पर हम आपको एमएसपी दे सकते हैं, उसको भी किसानों ने ठुकरा दिया है।
और मानसा जिले के भोपाल में एक 35 साल की महिला को दहेज के बदले मारने के आरोप लगे हैं। मृतका के परिजनों ने बताया है कि उनकी लड़की को दहेज के बदले मार दिया गया, उसका शव पंखे से लटका दिया गया, जिसके चलते जो सूचना है वो पुलिस को दी गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखा गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है और एक गुहार लगाते हुए उन्होंने कहा है कि ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करें और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। साढ़े 12 बजे मेरी मामी नाल इन्हां ने फोन ते गल कीती है। मेरी सिस्टर ने हੱਸ के वधिया गल्लां कीतियां ने। इदों बाद सानू अचानक उन्हां दे पिंड तो एक जगसीर सिंह नाम दे बंदे दा फोन आउंदा भी थोड़ी जेहड़ी सिस्टर आ गई ओहदी मृतक हो गई। ते जदों असीं आके देखिया ते ओहदे गल ते चारे पासे एन पूरी घुट के निशान पए वे सी। ना ही अपना सारा कुछ उत्थे पिया सीगा, रस्सा वगैरह सारा कुछ उन्हां ने साजिश घड़ी आ भी इदां करके भी आप फाह लिया। पर मेरी भैन नूं इन्हां ने सारे परिवार ने तंग करके मारिया। जदों तो ब्याह होया ओहदा इदों बाद ਉਹਨੂੰ तंग करदे सी दाज दहेज ਲਈ ਉਹ पूरा तंग ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਅੱਜ 12:15 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਜਗਸੀਰ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਐ, ਉਹਨੇ ਫਾਹਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗਲ ਤੇ 4 ਸਪੇਰੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਭਣੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਗਏ, ਵੂਮੈਨ ਸੈੱਲ 'ਚ ਗਏ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸੋਹਜਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵਾਈਫ ਆਫ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭੋਪਾਲ ਖੁਰਦ ਦੇ। ਡੈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੂਗੀ ਜੀ। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। एक हुंकार भरी थी शहीद भगत सिंह ने और 200 साल की गुलामी की जंजीर पिघलकर पारा पारा हो गई थी। आज एक बार फिर वही हुंकार भरी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने। मकसद आजादी के 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित जनता को उनके अधिकार दिलाना, उन्हें वो सम्मानजनक जीवन देना जिसकी कल्पना शहीद आजम ने की थी। सफर आसान नहीं था क्योंकि 75 सालों से सरकारी पीड़ा सहन करती जनता भी शोषण, रिश्वत और कालाबाजारी को भाग्य का लिखा समझ बैठी थी। लेकिन एक दिन ये तस्वीर बदलनी थी और इसे वही बदल सकता था जिसके दिल में निस्वार्थ सेवा भाव हो, जिसने आम आदमी की समस्याओं को करीब से देखा हो, उसकी पीड़ा महसूस की हो। माननीय मुख्यमंत्री का मानना है कि उनकी सरकार की पहली जिम्मेदारी जनता के जीवन में आसानी लाना है। इसलिए उनकी सरकार सत्ता के गलियारे में नहीं, जनता के द्वारे पर होगी। लिहाजा उन्होंने सुनिश्चित किया कि पंजाब में अब किसी को भी राशन लेने के लिए दुकानों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि हर महीने सरकार आपका राशन खुद आप तक पहुंचाएगी। गेहूं या आटा, पसंद आपकी। मान सरकार का मिशन, घर घर मुफ्त राशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर अब चंडीगढ़ से है, जहां पर रंजिश के चलते एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक प्रेम संबंधों में
साथ देने के शक में युवक का जो है अपहरण कर लिया गया। 16 फरवरी से युवक का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और युवक के परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद से युवक के पिता ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए और पुलिस से शिकायत भी की है। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ son of ਗੋਖਾ ਸਿੰਘ son of ਗੋਖਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਆਪਣਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ 16/2/24 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫੋਨ ਹੀ ਬੰਦ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਗੌਰਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫੀ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਕਾਸ਼ ਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹ ਦੱਸੀ ਆ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਟੱਕਰ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਟਿੱਡੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਰੱਖੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। और अब खबर गुरदासपुर से है, जहां फ्रेंड्स हॉर्स क्लब के युवाओं ने नशा मुक्त समाज और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ एक अलग पहल की है। क्लब से जुड़े युवाओं की तरफ से एक हॉर्स मैराथन का आयोजन किया गया, जो नशे के लिए कुख्यात गांव जोड़ा छतरा से शुरू होकर कई गांवों से होते हुए लगभग 12 किलोमीटर की दूरी तय कर जोड़ा छतरा में समाप्त हुई। घोड़ों पर सवार युवा गांव-गांव घूमकर युवाओं को नशा छोड़ने और पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान देने के लिए प्रेरित कर रहे थे। वहीं युवाओं की ओर से शुरू की गई इस अनूठे अभियान में एसएसपी गुरदासपुर दाइमा हरीश कुमार भी शामिल हुए। ਅਸੀਂ ਜੋੜਾ ਛਤਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਫਰੈਂਡ ਹਾਰਸ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਰੀਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਸਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋੜਾ ਛਤਰਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋੜਾ ਛਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਊਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਰਸਸ शहीद भगत सिंह ने और 200 साल की गुलामी की जंजीर पिघलकर पारा पारा हो गई थी। आज एक बार फिर वही हुंकार भरी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मकसद आजादी के 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित जनता को उनके अधिकार दिलाना, उन्हें वो सम्मानजनक जीवन देना जिसकी कल्पना शहीद आजम ने की थी। सफर आसान नहीं था, क्योंकि 75 सालों से सरकारी पीड़ा सहन करती जनता भी शोषण, रिश्वत और कालाबाजारी को भाग्य का लिखा समझ बैठी थी। लेकिन एक दिन ये तस्वीर बदलनी थी
और इसे वही बदल सकता था जिसके दिल में निस्वार्थ सेवा भाव हो, जिसने आम आदमी की समस्याओं को करीब से देखा हो, उसकी पीड़ा महसूस की हो। माननीय मुख्यमंत्री का मानना है कि उनकी सरकार की पहली जिम्मेदारी जनता के जीवन में आसानी लाना है। इसलिए उनकी सरकार सत्ता के गलियारे में नहीं, जनता के द्वारे पर होगी। लिहाजा उन्होंने सुनिश्चित किया कि पंजाब में अब किसी को भी राशन लेने के लिए दुकानों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि हर महीने सरकार आपका राशन खुद आप तक पहुंचाएगी। गेहूं या आटा, पसंद आपकी। मान सरकार का मिशन, घर घर मुफ्त राशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर अब संगरूर से है, जहां किसान आंदोलन को लेकर के हरियाणा के जीडीपी के बयान के बाद से जगजीत सिंह डलेवाल ने कहा है कि अगर आपको लगता है कि हमने हमला नहीं किया है तो हमारे किसानों पर और किसने हमला किया। उन्होंने कहा कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट को करानी चाहिए और एमएसपी को लेकर के केंद्र सरकार की ओर से यह प्रस्ताव दिया गया है कि जिस पर अन्य किसान संगठनों से चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक को 3 अन्य संगठनों का भी समर्थन मिला है और हरियाणा के खाप संगठन ने भी समर्थन इनको दिया है। अगर 21 फरवरी को सरकार के साथ बैठक बेनतीजा रही तो किसान शांतिपूर्वक दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। तो सभी पत्रकार भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ जिस तरीके दे नाल खुद अपने ते तशद्दुदां झलदे होए, अपने ते गोले बरसदे वेख के पिछे नहीं हटे ते सारिਆਂ ने इस मोर्चे नूं सिखरां ते पहुंचाउण दा यतन कीता। इसलिए सारिਆਂ दा तहे दिलों धन्नवाद करदा। दूसरी गल यह है कि देखो, सरकारां दी क्रूरता या सरकारां दीयां सोचां कि अपनियां ही मन्नियां जा चुकियां मंगां नूं लागू करवाउण लई लोकां नूं एडे एडे धरने देने पैण, इदों माड़ी हालत होर देश दी। क्योंकि जिहड़े देश दा प्रधानमंत्री रोज ये कहंदा होवे, वर्ल्ड दे विच जाके होके दिंदा होवे कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और जिस लोकतंत्र की बात करने वाले हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्हीं के राज में किसानों के ऊपर इस तरह का तशद्दुद किया जाए, जिस तरह का आप 2 दिन से हम देख रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह नट बंद इधर पंजाब की ओर भी कर दिया। वैसे तो जिस दिन से मोर्चा शुरू हुआ तशद्दुद की कोई कमी नहीं रही। हरियाणा एकदम बना रखा है जैसे वहां पे कर्फ्यू जैसी स्थिति बना रखी है। और यहां दर्दनाक बात इसमें से ये आई है निकलकर कि हरियाणा के डीजीपी का बयान आया है, वो ये कह रहा है कि भाई हमने कहीं पे भी बल प्रयोग नहीं किया, हमने कहीं पे भी अथरू गैस नहीं छोड़ा, हमने कहीं पे भी कुछ नहीं किया। और पंजाब की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।